is Usman Hamid. I am a student at Bahria University Lahore campus, and I am a part of the IEEE body. And hold on, recording has started. Okay, there we go. Difference between data science. I'm not here to differentiate between data science and data engineering. That is not the purpose of this workshop. We can have a separate Q&A session by the end of this workshop. So yeah, if you have questions like those, we can answer those at the end. Okay. Okay, let's get started with the workshop. As I said, my name is Usman Hamid. I am a sixth semester student in Bahria University Lahore campus. I am a part of the IEEE's executive body. And what the event today is about is that these four organizations that, as you can see here on the left side, we have IEEE and Bahria University. Every university in Pakistan has a IEEE student branch to them. And so, but in Pakistan, this is the first that IEEE is organizing these hackathons with Major League Hacking. And what Major League Hacking is, I'll be explaining that further on down through the event. But just to give you a brief rundown, कि Major League Hacking क्या होती है basically global organization है students की. ये हैकाथॉन्स अरेंज करवाते हैं अराउंड 65,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन करवाते हैं 12,000 प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और 3 से 4,000 स्कूल्स में इस वक्त रजिस्टर्ड हैं मेजर लीग हैकिंग एमएलए जिसको कहते हैं और इनके जो सपोर्टर्स हैं इनको जो बैकअप करते हैं वो गिटहब है गूगल है यूएस नेवी एयरफोर्स है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं एंड व्हाट दे डू इज़ के यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो हैकाथॉन्स वीक लॉन्ग होते हैं या 2-3 दिन के होते हैं वो अरेंज करवाते हैं फिर बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं और कुछ लोग कभी कभार ये होता है बच्चों के प्रोजेक्ट्स जब बहुत अच्छे बन जाते हैं वो आपको हायर कर जाते हैं लाइक दे कैन टेक यू अवे इनटू देयर कंपनी एंड मेक यू वर्क एज वेल. So that is one thing. So this is the first for IEEE. Okay, we are the official organizers for Major League Hacking. हम लोग Major League Hacking events ये पहला हमारा event है GitHub collaboration पे. आगे हम भी events करवाएंगे. Okay, let me just check comments as well. Okay, before we start, two quick FYIs. Sometimes when this is my laptop right here. So कभी मैं type कर रहा हूँ लेकिन मैं इस तरह देख रहा हूँ. It's not unnatural. I have a second screen as well. तो I'll be juggling content. मैं कभी इधर से चीज़ें लेकर आ रहा हूँ कभी चीज़ें से लेकर जा रहा हूँ तो आपने confuse नहीं होना कि अगर कभी कोई चीज़ एकदम मैं slide करके ले और आपके ये कहाँ से आई है. It's just me moving stuff from this screen to this screen. Also दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ या आप लोगों को समझ नहीं आ रही एक पॉइंट पे तो लाजमी ज़रूर बताएं ताकि क्योंकि मैंने ऑब्वियसली हर किसी को अकोमोडेट करना है. So those are the two FYIs that I want you guys to know. So let's start. I'm gonna share my screen. Let's go. Okay, share screen one. Okay. So हम जाएंगे सबसे पहले अपनी slides के पास. We are gonna go with slides. Okay. Let me switch. ठीक हो गया. Okay जी, how to collaborate on code with GitHub. ये हमारी सबसे पहली workshop है. Let me quickly pull up Teams on the left side. ठीक है? How to collaborate on code with GitHub. अच्छा ये हम वर्कशॉप क्यों करने जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ एज आई सेड बिफोर फॉर द न्यू पीपल हु आर जस्ट हियर मैंने जो पहले 10-12 लोग थे उनको ये समझाया कि आप लोग आगे जा रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों ने कोड पे कोलैबोरेट करना होगा आपने कोड लिखना होगा आपने लोगों को समझाना होगा एक ही कोड बेस पे काम करना होगा वो कैसे करेंगे देयर इज फ्यू सिस्टम्स डेवलप कुछ बने हुए होते हैं सिस्टम्स जिन पे आप उन पे काम करते हो फिर आप कोड बनाते हो गिटहब इज़ वन ऑफ दोज तो हम आपको आज गिटहब सिखाएंगे आए जाते हैं ओके मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले जैसे कहूँ लेकिन जस्ट अ क्विक ओवरव्यू माय नेम इज उस्मान हमीद यू कैन फाइंड मी एट Usman H_ on Twitter on my social handles. I'm here to lead this session along with Farhan Ashraf. Unfortunately, he is not going to be presenting as much as me, but he will be here with you guys to help you learn something new today. I am a seasoned Major League Hacking participant. What that means is कि पिछले 1-2 सालों से मैं Major League Hacking में काम कर रहा हूँ. I actively participate in these events, so I have a lot of information about them as well. Fun facts about me: I love cats, and I also love to watch anime a lot. My favorite is Attack on Titans, which in Japanese is Shingeki no Kyojin, I guess. So yeah, that is a brief introduction on me. Okay, so we have this check-in link, which I don't think you guys need to use. I can quickly check for a link for you guys. I'll send in a code. And this is the... Okay, I just sent a link in chat. You don't have to do this necessarily, but it is encouraged that you do so. एक लिंक आपको भेजा है मैंने चैट में जो आप यूज़ करें मेजर लीग हैकिंग की साइट पे जाके आप इसको चेक इन करें चेक इन करने का फ़ायदा ये है कि यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द स्लाइड्स जो हम प्रेजेंट करेंगे इधर और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप विद इन अ वीक और 2. तो ये एक लिंक है लेकिन इसको डोंट वरी अबाउट इट आप बाद में भी कर सकते हैं. अच्छा एज आई सेड मेजर लीग हैकिंग हमारे पास जो हैकर्स को एम्पावर करती है
hacking की जो term है ना in MLH, it does not necessarily mean you hack something like you hack someone's Facebook account or something. Hacker basically means you make software every day and new days. So that is a hacker for you guys in Major League Hacking. 55,000 plus hackers every year, 12,000 plus projects, and 3,000 plus schools. Okay. आज हम क्या सीखेंगे? हम बेसिक्स ऑफ गिट और गिटअप सीखेंगे। गिटअप का वर्कफ्लो क्या होता है? दिस विल ऑल बी वेब बेस्ड। और फिर उसके बाद ऑप्शनल कमांड लाइन गिट यूजेज है। क्योंकि हमने जाके कुछ क्लासेस में जाके यूनिवर्सिटी में लोगों को समझाया था कि गिटअप हम सिखाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तो द फीडबैक दैट वी गॉट वाज के हर किसी को नहीं पता कि क्या होता है। तो हम कमांड लाइन गेट यूजर्स आपको को इस इवेंट में नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स रियली हार्ड टू डू फॉर समवन हु इज अ रियली नॉविस कंप्यूटर यूजर। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सो वी वांट टू अकोमोडेट आवर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि दे आर रियली एंथुसियास्टिक दिस ईयर अराउंड, तो हम चाहते हैं कि हम उनको अकोमोडेट करें। तो हम कमांड लाइन गेट यूजेज अभी नहीं कराएंगे, लेकिन वी इनकरेज के अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपको कराएं कमांड लाइन गेट यूजेज, वो हम एक और फीचर वर्कशॉप में रखवा सकते हैं। बट इफ आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस पॉपिंग अप रिगार्डलेस। ओके, सो अच्छा, कमांड लाइन की चीज़ें हम अभी आप लोगों को नहीं करवा रहे। इट्स नॉट समथिंग दैट वी एनकरेज यू टू डू राइट नाउ। गिटहब अलबत्ता हम आपको पूरा करवाएंगे। ओके, मूविंग ऑन। व्हाट विल बी वर्किंग ऑन, लाइक आई सेड, हमने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को अकोमोडेट करना है और हमने सबको साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। तो हम बड़े ही बेसिक किस्म का, आई बिलीव कि एक दो हफ्ते गुजर गए हैं तो उन्होंने CP की लैब्स 2-3 ले ली होंगी। तो हमने बड़ा बेसिक किस्म का C++ का कोड बनाया हुआ है जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करेंगे। और कंट्रीब्यूट जब आप करेंगे, यू बिकम एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर, विच इज़ अ फन थिंग टू से। ओपन सोर्स क्या है वो मैं आगे जाके समझा दूंगा आप उनको। लेकिन दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट यू बी वर्किंग ऑन, नॉट इन विजुअल स्टूडियो। आप बस एक वेब पेज होगा जिसमें आपने बस अपनी लाइन ऐड करनी होगी, लेकिन यू विल बी डूइंग दैट ऑन गिटहब। तो हाउ विल यू बिल्ड इट? हम सबसे पहले मिल के एक अकाउंट रहेंगे गिटहब पे, फिर उसके बाद हम फोर्क करेंगे। ये जो फोर्किंग और ये टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी आगे जाके एक्सप्लेन होंगी सारी। तो बेसिकली मेरी रिपोजिटरी को फोर्क करेंगे, IEEE पेरी यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी को फोर्क करेंगे। हम उसमें इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करेंगे, फिर आप लोग एक पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसको मैं लाइव इधर बैठे हुए एक्सेप्ट करूँगा। इफ़ आई एम टॉकिंग फास्ट प्लीज़ लेट मी नो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समझ ना आए कि कोई चीज़। F21 ओके। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी बिल्डिंग इट। और फिर हम आपको एंड में कोड रन करके दिखाएंगे कि लोगों ने कमिट किया था इस कोड को। Okay, now you understand how it works. Let's get started. Introduction to Git and GitHub. We're all going to collaborate on a project together. How? Version control. Okay, two terms अब आ गई हैं। अभी तो अभी तक हम लोगों को मैं समझा रहे थे कि GitHub करना है। अब Git आ गया। Git क्या है बेसिकली? Git is a version control system. Version control क्या है वो अगली स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन just to understand this, गिट जो भी मैंने आप लोगों को पहले बताया, हमारे पास कमांड लाइन फंक्शंस होते हैं। मतलब कि जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा शायद विंडोज़ में, जिस चीज़ को कहते हैं सेम चीज़ गिट होती है। इट पॉप्स अप अ कमांड लाइन, आप 2-3 लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, आप अकाउंट की क्रेडेंशियल्स देते हैं अपने, फिर आप 2-3 और लाइन का कोड लिखते हैं, फिर आपके पास एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होती है या कोई लोकली स्टोर्ड आपके पास रिपोजिटरी होती है। आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो अपने कंप्यूटर पे, लोकली स्टोर कर देते हो, फिर उस पर आप काम करते हो, एंड देन यू यूज़ गिट अगेन ऑन कमांड लाइन, और फिर आप उसको कुछ 2-3 और कोड्स के बाद उसको फिर एक वापस भेजते हैं ऑनलाइन। ये गिट की कमांड लैंग्वेज थी। गिट हब क्या है उसकी जगह? आपके पास लेट्स से नहीं, लेट्स से नहीं, सॉरी, गिट हब जो है ना, आपके पास एन ऑनलाइन वेब बेस्ड वर्जन ऑफ गिट है। ठीक है, इसमें आपको ना आपको वो कमांड लाइन की फंक्शंस यूज़ करनी पड़ती हैं, ना आपको कोई फैंसी शमैंसी कोड लिखना पड़ता है एक्स्ट्रा। आपको सिंपल 3-4 बटन्स लिखते हो एंड यू मेक अ रिपोजिटरी, आप उस पर फिर काम करते हो और सब कुछ करते हो। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती वो यूज़ करने की कमांड फंक्शंस की। So that is GitHub for you guys. GitHub uses Git for version control and provides you all sorts of awesome collaboration tools. अब आ जाती है version control system की। What is a version control system? This is a very important point जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि big companies जैसे Google हैं, Microsoft हैं, Apple, Facebook, वो सारे किस तरह काम करते हैं आपस में through a version control system. हम GitHub यूज़ करने जा रहे हैं आगे, which is backed up by Microsoft. Microsoft GitHub यूज़ करता है और उनके सर्विस पे चलता है। लेकिन Google एक प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह आपस में, लेट्स से गूगल की टीम आपस में काम कर रही है, हाउ डू दे कोलैबोरेट ऑन कोड? वो एक दूसरे के साथ कोड कैसे शेयर करते हैं? उनके वो भी एक चीज़ होती है, गिटहब की तरह होती है, लेकिन उसका नाम पाइपर है। ठीक है, दे यूज समथिंग कॉल्ड पाइपर, वो उनका वर्जन ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ why you people should know how to use a version control system, which is in this case is GitHub. अच्छा, आगे चलते हैं। why version control? I'm not going to teach you version control on the slides. मैं आपको उसकी बजाय पेंट में करके दिखाऊंगा। Let me drag. Okay, I'm going to drag something from my screen. Okay, ये देखो, अब मैंने पेंट खोला हुआ है। Okay, imagine this. आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ठीक है, और आपने एक
चंक ऑफ कोड, छोटा सा चंक ऑफ कोड जो है ना, एक रिपोजिटरी बना के चंक ऑफ कोड बनाया है विच इज़ दिस सर्कल, ठीक है, एंड वी कैन कॉल दिस सर्कल वर्जन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पास वर्जन नंबर 1 आ गया कोड का, और इसको कमिट किसने किया है, ये सॉरी कमिट कह रहा हूँ सर, इसको बनाया किसने है, उस्मान ने बनाया। लेट्स से मैंने वर्जन नंबर 1 मैंने बनाया है इस कोड का, ठीक है। अब एक और बंदा आता है, लेट्स कॉल हिम अली, ठीक है। अली एक बंदा आता है, वो आता है और मेरे इस कोड में आके एक एक्स्ट्रा फंक्शन डालता है विच इज़ दिस लाइन कमिंग आउट ऑफ द सर्कल, विच तो इसकी वजह से मेरे कोड का नाम हो जाएगा वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 2। नाउ लेट्स से अगेन, अब सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारे पास वर्जन नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास तीसरा बंदा आ जाएगा, लेट्स से हिज नेम इज़ फरहान, वो आके इस कोड पे 2 लाइंस डालता है एंड वी कॉल इट वर्जन नंबर 3। You should start to see a pattern that is emerging. कि we start with the base code, हम उसमें एक फंक्शन एक और ऐड करते हैं, then we constantly एक iterative process होता है जिसके थ्रू फंक्शंस constantly ऐड होते जाते हैं। हमने पहले एक सर्कल बनाया, फिर उसके बाद एक लाइन खींची, फिर उसके बाद 2 लाइनें और खींच दी। अब I'll make one more for you guys। हमारे पास एक और स्टूडेंट आ गया, अवैस आ गया, उसने आके 3 लाइनें बना दी हमारे पास, 2 टांगे बना दी, चलें let's say 2 टांगे। हाँ, अच्छा, ये हमारे पास वर्जन नंबर 4 आ गया कोड का। अच्छा, आई जस्ट सॉ कमेंट, रिगार्डलेस। तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट वर्जन ऑफ कोड हैं, लेकिन जो कोड हर किसी के पास होगा ना, इट विल बी द लेटेस्ट वन, वर्जन नंबर 4, ठीक है। लेकिन अब जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का काम होता है ना, इट कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। इट स्टार्ट्स विद द बेस कोड एंड गोज टिल द एंड, टिल द लेटेस्ट क्या कहते हैं वर्जन ऑफ द कोड। और वर्जन कंट्रोल का ये काम होता है कि अब इसको मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा। लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आप 3 से 4 लोगों की टीम है। एक हमारे पास रिपोजिटरी बनी हुई है जिसके अंदर बेस कोड है हमारे पास, या बेस कोड ही कहना चाहिए, लेट्स से सिंपल कोड पड़ा हुआ है। उस पर एक बंदा काम करेगा, वो चेंज सबको नजर आएगा। उस पर दूसरा बंदा काम करेगा, सबको चेंज नजर आएगा उस रिपोजिटरी पे। तो इसका ये फ़ायदा है कि हर बंदे के पास जो है ना अपडेटेड वर्जन ऑफ द कोड रहेगा। कभी भी किसी के पास कोई पुराना वर्जन नहीं होगा, ना कभी किसी के पास कोई नया वर्जन होगा। एवरीवन विल हैव द सेम बेस कोड, ताकि इससे स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है हमारे पास प्रोसेस सारा कोडिंग करने का और कोलैबोरेट करने का कोड पे। सो लाइक आई सेड, आप लोग देख सकते हैं आई हैव वर्जन नंबर 1 ऑफ द कोड, फिर उसके बाद एक बंदा आया, उसने कमिट कहता हूँ सॉरी, बार बार कीप ऑन सेइंग कमिट, उसने कोड में चेंजेस करके उस लाइन लेकर आया, वर्जन 2 बन गया हमारे पास। वर्जन 3 में एक और बंदा आया, उसने तीसरी लाइन खींच दी, वर्जन 4 में आके चौथे बंदे ने लाके लाइन खींच दी। सो दैट इज़ वर्जन कंट्रोल बेसिकली, कि पीपल कैन वर्क ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम and expect the same results instead of someone having a different type of code. तो अब इसको स्लाइड्स की लैंग्वेज में कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्जन कंट्रोल फीचर्स क्या होते हैं, अब जब देखें, आप लोग अभी अपने किस सेमेस्टर में, फर्स्ट, तीसरे, चौथे में, जिसमें भी हैं, आप लोग, मुझे पता है कि कोड एक दूसरे को किस तरह भेजते हैं, इधर थ्रू ईमेल्स भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, कोई लोग आउटलुक यूज़ करते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दैट इज़ बैड प्रैक्टिस। आपको ये इस तरह करना नहीं चाहिए। भला क्यों? क्योंकि कोड रीफैक्टरिंग एक चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है। उससे होता ही है कि जब आप किसी को कोड भेजते हैं ना, ऊपर नीचे होती हैं 2-3 लाइनें, कभी कभार डेटा टाइप्स बदल जाते हैं, कोई सन गन खिचड़ी मच जाती है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे ना, दे विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड द वर्जन कंट्रोल। और अगर आपको वर्जन कंट्रोल नहीं यूज़ करना आता होगा, तो यू वुड हैव टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा amount of time learning how to use version control for that company. Instead of doing that, आप workshops throughout the university लें जिसमें आप version control यूज़ करते हैं, and then okay, I see a hand raised. 027. Yes. If you have a question, just post it in chat. Well, let's just wait for his question. Let me type it for him. He still has his hand raised. 27. You can just post your question in chat. The
Okay, I think he is not typing his question, so we're going to continue with the workshop. I'm sorry, but I can't bring you on call right now because we're in the middle of the session. Once we start with the Q&A session, you can pop up. But for now, just please post your questions in chat. I would appreciate that. Thank you. Okay, so where was I? Okay, I was explaining version control. Like I said, when you're working with each other in जिस semester में आप काम कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे को कोड भेजना होता है, आप emails या WhatsApp के थ्रू भेज रहे होते हैं, which is not efficient, not good, unprofessional लगता है. क्योंकि जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे आपसे कोई कोड मांगेगा, 20 लोग आपसे कोड मांगेंगे कि यार हमें आपके कोड बेस पे काम करना है. आप उनको हर एक को ईमेल तो नहीं लिखोगे ना. आप बैठ के हर बंदे को आपने डिफरेंट तरह से केटर करना होगा. आप उसको ईमेल दोगे, आप उसको ईमेल दोगे. दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू डू दिस. व्हाट अ बेटर वे वुड बी टू डू दिस इज कि आप वर्जन कंट्रोल यूज़ करें. इधर नीचे लिखा हुआ है कि यू कैन वर्क इन पैरेलल. इसका क्या मतलब है? एक रिपोजिटरी होगी. रिपोजिटरी क्या होती है? बेसिकली डायरेक्टरी होती है कोड्स की और फाइल्स की. आप एक रिपोजिटरी पे काम कर सकते हो एट द सेम टाइम. दो बंदे इकट्ठे काम कर सकते हैं. मतलब लेट्स से एक बंदा है, उसका काम है एक चीज़ पे एक फंक्शन बनाना, दूसरा बंदा उसका काम है दूसरा फंक्शन बनाना. आप दोनों एक बेस कोड उठाओगे, दोनों इकट्ठे काम करोगे, एंड वंस यू डन आप लोग वापस मर्ज कर सकते हो उसी रिपोजिटरी में. इसका फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे को आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आज जब तक ये अपना कोड नहीं फिनिश करता मैं अपना नहीं कर सकता. यू बोथ वर्किंग इन पैरेलल में काम कर रहे हैं. तो दैट इज़ वर्जन कंट्रोल. अब हमारे पास असली काम आ गया है जो कि अब आप लोगों ने भी मेरे साथ करना है, विच इज़ मेकिंग अ गिटहब अकाउंट. So basically, I'm going to take 5 minutes, not 5 minutes, just 2 minutes. If you have any questions, just post them up regarding हमने जो पिछली सारी स्लाइड गुजारी हैं. अगर क्वेश्चन नहीं है, just give me 2 minutes. मैं दूसरे ब्राउज़र में जाना. अब हमने गिटहब का बेसिकली अकाउंट बनाना है. मैं आप लोगों को एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग उनकी साइट खोल लें. अब हमने साथ करना है काम. सो आई वुड प्रेफर कि आप लोग सारे जो हैं यू गेट अप, पानी शानी पिएँ, लैपटॉप खोलें और अपना ब्राउज़र खोलें और आ जाएँ. हमने अब अकाउंट बनाना है और आगे अब काम करना है. बिकॉज एट द एंड या एट द मिडल ऑफ द वर्कशॉप आप लोग ने भी कमिट करना है कोड पे. लाइक यू पीपल हैव टू कोड अ लिटिल बिट. सो लेट्स जस्ट गेट अप, लेट्स मेक एन अकाउंट. आई एम सेंडिंग द लिंक इन चैट. Okay. Someone is waiting in lobby. Can my team please accept them in? Or should I accept them? Can we get those notes? Oh, you mean the slides? हाँ, आपको वर्कशॉप के एंड पे आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लें. अब you will get all the slides जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको slides मिल जाएंगी. इवन कि ये entire रिकॉर्डिंग जो हो रही है इस वर्कशॉप की, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इंशाल्लाह कल तक. Kamran is waiting in the lobby. Why am I getting requests? Okay, can you start it again? Start what again? The entire workshop? पूरी वर्कशॉप शुरू कर दूँ मैं? Kind of ambiguous. Can you start it again, this chat? I'm sorry, that is a very ambiguous statement. But okay, regardless, I'm gonna pull up GitHub for you guys. Acha, from start because I was connected. 27, whatever your name is, I'm sorry. इस तरह workshops नहीं चलती कि we start the entire workshop again for one person. लेकिन देखें, मैंने like I said, ये record हो रही है, कोई मसला नहीं है. ये online आपको मिल जाएगी IEEE की pages पे और YouTube पे भी. तो don't worry about it, you can start fresh from there as well. अब मैं recommend करता हूँ, आपने अभी कुछ नहीं आपने lose किया. You haven't lost anything. आप आराम से अभी गिटअप का होप अच्छा मोबाइल में जो था वो वेब पेज नज़र आ रहा है गिटअप का. गिटअप का पेज खोलें, हम अकाउंट बनाने लगे हैं. वी आर अबाउट टू मेक एन अकाउंट ऑन गिटअप. और यहाँ से बेसिकली हमारी वर्कशॉप असली स्टार्टअप हो रही है. उससे पहले तो बस इंट्रोडक्शन था. सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट. वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन. सो मी जस्ट सी इफ आई हैव एन एक्स्ट्रा ईमेल दैट आई कैन यूज फॉर दिस. US man for later posts. Okay. There was just an intro before. Okay. So प्लीज़ कोई एक जितने भी लोग हैं इधर यहाँ पे प्लीज़ यस या नो कमेंट कर दें इफ़ यू कैन सी द वेब पेज फॉर GitHub so that I can continue with the workshop. Yes, okay, thank you 35. अच्छा, तो आपके पास ये स्क्रीन आ रही होगी साइड पे, टॉप राइट पे लिखा होगा साइन अप. वंस यू क्लिक साइन अप इट विल टेक यू टू दिस पेज. आपके पास ये क्रिएट योर अकाउंट का पेज आ जाएगा. सो लेट्स गो. ओके, यूज़र नेम आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों कोई ज़्यादा लाइक
वो ना बनाए कोई स्पेशल किस्म का ना, कीप इट वेरी सिंपल. गिव योरसेल्फ अ निकनेम, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ अकाउंट अपना उस्मान MLH. I could just name my account that. I would recommend कि आप यूजर नेम्स को very basic, very simple रखें. ज़्यादा numbers ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कोई अंडर अंडर वो अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बाद में ये होता है कि जब आपके किसी ने कोड पे कोलैबोरेट करना हो, आपकी नाम बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना उनके लिए, यूज़र नेम जो होता है. So keep it simple, okay? Use an email address. Oh, you guys can see my email address. That is bad. Okay, regardless. I will be using this email that I have. Okay, Swan for later uploads. It is uploads with an S. Yes. Okay, I see 2 yeses. That's good. Okay. ईमेल एड्रेस आपका पास अगर एक्स्ट्रा अभी नहीं है, so I'll give you 2 minutes, बना लें जल्दी से. फिर ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है. Obviously password मेरा अपना होगा कोई. Here we go. I'm not gonna show it. लेकिन बेसिकली अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास ईमेल एड्रेस मैं अपनी चेक कर लूँ बस जल्दी से. If it's the same. Yeah, it is the same. Okay. Yeah, you make it. Okay, yes. Also, one major point that I forgot about it is that by the end of this workshop, especially for Barry University students, आपको हमने student developer pack भी देना है, which I'll explain later वो क्या होता है, ठीक है? वो लेकिन बहुत important चीज़ है, और वो I would recommend कि आप you would stay for that. आप काफ़ी फायदेमंद देगा आपको बाद में आपकी development environment में. Excuse me. Let me drink some water. If you have an email ready, just comment that you're ready to move on. Okay. You make a password. Let me just retype it. I don't remember what I typed. Okay. Send me occasional product updates. You don't need to do that. Okay. अब टाइम आगे वेरीफाई करने का. I got the Spiral Galaxy one. आपको हो सकता है OctaCAD आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है. हो सकता है आप लोग सारों को Spiral Galaxy का कि वेरीफाई करने का. Just click it 6 times. This is the Spiral one. We've done. इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसमें पर्सनल ईमेल डालनी है या एजू? ओके. पर्सनल ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. आप बाद में एजुकेशनली ईमेल है वो भी आप डाल पाएंगे, वो मसला नहीं है. वो भी आपको बाद में वो सिखा देंगे आप लोगों को. इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? यूट्यूब, फेसबुक, सोशल्स में हमारे ऑब्वियसली वहाँ पे मिलेगी. IEEE के बैरियर यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के. व्हाई डिड इट स्टार्ट अगेन? And this, we are done. Okay, we create an account. Actually, let me also keep the slides updated. हमने अकाउंट बना लिया अपना. अब हमने गिटहब को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है साथ साथ. Where is it? Okay, save. Okay, when you guys are here, let me know. Link of हाँ, we will email you thing. LMS पर नहीं, LMS पर नहीं होगी. Don't worry about that. LMS पर क्यों चाहिए? Why would you need it on LMS? There was a problem creating your account. आ रहा है. And someone's raising their hand. Like I said, if you have a question, please post it in chat. Like I said, when we're during the session, we won't accept people on call or in the presentation. 18. If you have a question, please post it in chat. Okay. There was a problem creating your account. Same issue here. Then don't use the barrier email. Then use your simple Gmail account. Okay, so I think this problem is consistent. 3 से 4 लोगों को आ रहा है. So मैं रोल नंबर 30 को जो है हमारे पास 031341913030 इनको मैं कॉल पर लूँगा और हम इनकी स्क्रीन हम शेयर करवाएंगे ताकि हम इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. प्लीज़ we're gonna make you a presenter. आपने कॉल पर आना है, आपने अपना माइक अनम्यूट करना है और अपना प्रॉब्लम बताना है, ठीक है? आ जाओ. Can we please get him on call? He's a presenter. Okay, roll number 30, please. अपना mic unmute करें. Please introduce yourself. Okay, roll number 35 said that he has
create his account with Barrier email. There is no issue. Okay, good. That is good. It doesn't matter. It's okay if you didn't have a problem. जिनका और है कोई मसला नहीं. यही तो खूबसूरती है MLH की. आप उनकी मदद हम साथ साथ करेंगे. We will stop for you. Don't worry about it. अच्छा 030. Let me log in from PC. अच्छा आप PC पे नहीं हो. Oh, that's not good. We're gonna have to. I'm sorry. We're gonna have to put you on a queue again. So we're gonna put someone else on. किसी और का अगर ये मसला आ रहा है तो बताएं. 018 can present now. 018 अब आ गए हो. 018 you're in call. आ जाओ. 18 आपने hand raise किया हुआ है. You can unmute yourself. Hello. आपने hand raise किया हुआ है. कुछ बोल तो लें. Nothing. No. Sorry about that. For some reason, there was a little bit of discrepancy between me and my team for a short amount of time. They muted me for some reason. I don't know why, but I'm sorry, 18. If you guys are on mobile phones, we can't accept that. We have to work on computers, as I said before. So we're just gonna move on with the workshop. If you don't have your account by the end, if you still don't have an account, we'll help you make one. हम आपकी मदद कर देंगे एक और account बनाने में. बहरहाल अच्छा जी, we've got way out of track. अच्छा आगे चलते हैं. तो अच्छा जब आपका गिटहब का अकाउंट बन जाएगा ये आपको सामने नजर होपफुली आपको नजर आ रही होगी वेबसाइट. यानी मोबाइल पे नहीं बन सकता. मोबाइल पे बन सकता है. इस नॉट के बन नहीं सकता लेकिन आप बैरियर की ईमेल यूज़ करते हो सकता है उसकी वजह से कोई मसला आ रहा हो. लेकिन बन सकता है. मोबाइल पे अकाउंट बन सकता है. अच्छा रिगार्डलेस लेट्स कंटिन्यू विद द वर्कशॉप प्लीज़. हमारे पास ये गिटहब का लेआउट आ गया होगा आप उनके पास होपफुली जिन जिनका अकाउंट बन गया. सबसे लेफ्ट पे आपको ये ऑक्टाकैट है उनको लोगो नज़र आ रहा होगा. सर्च ऑप्शन है. आपके पास पुल रिक्वेस्ट है. यू हैव इश्यूज़. डोंट वरी अबाउट मार्केट प्लेस और एक्सप्लोर. और राइट साइड पे आपको मिलेगा आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन. ये प्लस का आइकॉन जिसकी वजह से आप रिपोजिटरीज बना सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं. न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. और ये बेल आइकॉन है जो बेसिकली आपको नोटिफिकेशन देता है कि आपको अगर कोई पुल रिक्वेस्ट आई हैं या अगर आपको इश्यूज़ हैं कोड में. तो ये सब कुछ 11 वापस चलते हैं. ओके. Oh, we also have to verify my email. Let me just do that, please. Let me just quickly do that. I'll verify my email. Excuse me. Just quickly do that. Please verify. How long भी verify करने हैं? Yes, it is now verified. Hopefully. No, I don't think it just got verified. Sorry about this. That's an unexpected hurdle that we're having. I forgot to verify my email. Okay, I got the link. Let me just post it here and enter. Okay, I think we are now verified, hopefully. Let me just refresh this page. Yes, we're now verified. Okay. Please, let's start with the workshop again. I'm sorry about this. So, कुछ students को chat नहीं show हो रही. Don't worry about it. You're going to be coding on your laptop, so please use the laptop. Okay. Okay, that is also my team that is helping you guys. अच्छा, regardless. पुल रिक्वेस्ट है आप उनके पास जैसे मिलता है. पुल रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होती हैं. आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना गिटहब पे किसी रिपोजिटरी अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो यू कैन इशू पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि अगर आपने एक फीचर या कोड बदल के कुछ उनके कोड को कुछ किया ना आप उनको पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि यार मैंने ये चेंज किया है. आप इसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते. तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ वी एक्सेप्टेड योर पुल रिक्वेस्ट. लेकिन पुल रिक्वेस्ट के आगे बारे में बात करते हैं. इश्यूज़ क्या होते हैं बेसिकली अगर आपके कोड में या किसी कोड में मसला है ना आप इशू कर सकते हो. इश्यूज़ को मतलब कर सकते हो क्यू अप कर सकते हो कि यार इस कोड में ये मसला है
विदाउट हैविंग टू एक्चुअली शो योर ओन कोड। मतलब अगर किसी कोड में मसला है ना, आप उसको बजाय कि ये कहे कि यार ये लो ये सही मैंने करके दे दिया, आप उससे बता सकते हो कि यार इसको आपके कोड में ये मसला है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। कि मैंने प्लस साइन आपको बता दिया था कि आप नई रिपोजिटरी बनाओगे, न्यू गेस्ट आप उनके टू गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। और राइट साइड पे आपका अकाउंट का आइकॉन होता है। लेट्स मूव ऑन विद द स्लाइड्स। एक्सप्लोरिंग ए गिट रिपोजिटरी भी हमने करना है। ओके अब हम हमको अब हम लोग जो है ना आपको IEEE की जो है ना वो दिखाएंगे, गिटहब की रिपोजिटरी। मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ चैट में, वो आप लोग प्लीज़ खोल लें। इधर एक प्रोजेक्ट होगा जिस पे आप लोगों ने काम करना है। Where is it? And posting it in chat। लिंक आ गया होगा आप लोगों के पास, IEEE BULC MLH कोड कोलैबोरेशन गिटहब। तो ये एक रिपोजिटरी है जो हमने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया, आप लोगों के लिए तैयार किया ताकि आप लोग कोड कोलैबोरेट करें हमारे साथ इस पे। तो दिस इज़ द लिंक, प्लीज़ खोलें जिनका अकाउंट बन गया। ओपन दिस लिंक विद योर अकाउंट। मेक श्योर कि आपने अकाउंट के साथ करेंगे क्योंकि अब अपने इस पर थोड़े बहुत एक्शंस करने हैं, लाइक फोर्किंग, पुल रिक्वेस्टिंग, कमिटिंग, ये सब कुछ हमने करना है। तो यू नीड टू हैव एन अकाउंट फॉर दैट। तो अकाउंट होपफुली आप लोगों के पास बना हुआ होगा। अभी हम चलते हैं वापस। Do I need paint? No, I don't think I need paint. Okay, regardless. Exploring a repository. Maybe वो link खोल लेता हूँ आप लोगों के साथ। Copy link and going into this space. And it did not open for some reason. Why? Hold on. It is not opening for some reason. It should actually. Let me check if my email got verified or not. My email is verified, I think. Yeah, it is. Oh, okay. Sorry. Since my bad. My background is not black, so I was thinking like, whoa. Okay, never mind. Okay, so this is your main layout for the repositories on GitHub. आपकी जब भी आप कोई रिपोजिटरी बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अपने पर्सनल अकाउंट में, दिस इज़ व्हाट इट शुड लुक लाइक। अब रिपोजिटरी में आप लोगों को पहले ही बताया था, जैसे एक डायरेक्टरी होती है फाइल्स सोर्स कोड की 11 तो ये नीचे अगर आप देख सकते हैं, ये जो कोड का सेक्शन है, दिस सेक्शन राइट हियर, इफ माय कर्सर इज शोइंग दैट, ये जो कोड सेक्शन है इसमें आपको बेसिकली पूरी रिपोजिटरी की लिंक्स आ जाते हैं कि फाइल्स क्या हैं, रीडमी क्या है, source.cpp क्या है, एंड दिस source.cpp इज़ द फाइल दैट यू गाइज आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू। आप लोग इस पर काम करेंगे अभी। तो ये कोड का सेक्शन होता है। इश्यूज होते हैं जहाँ पे लोग आपको इश्यूज करते हैं कि यार आपके कोड में ये मसला है, इसको हल कर लो इस तरह से। दैट इज़ अ गुड वे ऑफ टेलिंग पीपल कि आपके कोड में क्या मसला है। इश्यूज आप कर सकते हैं सबमिट। ये यहाँ पे ये जो पुल रिक्वेस्ट का सेक्शन है, दिस इज थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट आपको आती हैं लोगों की। जैसे अभी IEEE BULC का जो रिपोजिटरी बनी हुई है ना अभी हमारे पास, इस पे आप लोग जब काम करेंगे ना और इस पर आप पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ये हमें इधर लाइव शो होंगी, आप लोगों की पुल रिक्वेस्ट हमें शो होंगी। अब वी विल बी एक्सेप्टिंग दोज लाइव एज वेल। तो ये बेसिकली एक वर्क फ्लो हम डिस्कस करें गिटहब का। सो दैट इज कोड पुल रिक्वेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट। टॉप राइट पे देखें ना, इधर सबसे टॉप राइट पे इफ यू कैन सी लिखा हुआ है फोर्किंग। फोर्किंग क्या होता है वो हम आगे जाकर बताएंगे। अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इशूइंग, पुल रिक्वेस्टिंग, फोर्किंग, कमिटिंग, अभी आप आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सो कीप दिस टैब ओपन, ये टैब को खोल के रखें, अभी हमने इस पे काम करना है। पर लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स एंड लेट्स डिस्कस के ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या होती हैं सारी। ये वही अब आगे फिर से आगे कोड आ गया। वी हैव कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट एंड देन there's a lot of terminology. अच्छा, let's get towards the terminologies. Let's open this and switch my screens with this. Okay. अच्छा जी, अब हम आ गए हैं गिटहब कोलैबोरेशन वर्कफ्लो। वर्कफ्लो क्या है? बेसिकली पूरे किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं ना, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, और वो हाउ गिटहब प्लेज अ बिग रोल इन दिस। दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू डू। फोर्किंग, सबसे पहली चीज़ आती है जी हमारे पास फोर्किंग। फोर्किंग क्या होती है? जो भी आप लोगों ने जो लिंक खोला है, आप लोगों को एक रिपोजिटरी नजर आ रही होगी, source.cpp, readme.md, और एक फोल्डर बना हुआ है, ये फोल्डर कहाँ से आया है, रिगार्डलेस। ये एक रिपो बनी हुई है आपके पास। रिपो इज शॉर्ट फॉर रिपोजिटरी बाय द वे। I'll be saying repo now। तो जाके पास जब एक रिपो होती है ना गिटहब पे, उसको जब आप फोर्क करते हो, फोर्किंग मीन्स कि बेसिकली यू टेक द इंटायर रिपोजिटरी, आप अपने अकाउंट पे उसकी कॉपी बना लेते हो। फिर से एक रिपोजिटरी है, उसके अंदर कोड है, आप उसको फोर्क करते हो एंड यू गेट द इंटायर कोड। आपको पूरी की पूरी कोड बेस मिल जाती है, उसकी कॉपी मिल जाती है अपने पास, ताकि आप उस पर एडिट कर सकें कुछ। ब्रांचिंग क्या होती है? जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, किसी भी क्या कहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसकी रिपो पड़ी हुई है,
आप उसको रीपो को फोर्क करते हो और फिर आपने जो फीचर ऐड करना है, मतलब ऑब्वियसली आप पूरे कोड को खुद तो नहीं बना रहे ना, एक कोड है उस पर आपने लेट्स से एक छोटा सा फंक्शन ऐड करना है, उस फंक्शन को जो फंक्शन आप ऐड करोगे ना, आप उसको ब्रांच कहते हो, दैट इज ए ब्रांच, द फीचर दैट यू आर एडिंग इज कॉल्ड ए ब्रांच. ब्रांच इज अ पैरेलल वर्जन ऑफ मास्टर कॉपी ऑफ repo, yes it is. और बेसिकली हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना गिटहब में यूज होती हैं, एक मेन ब्रांच होती है विच इज़ दी रिपोजिटरी, जो ओरिजिनल रिपोजिटरी होती है, जो हमारे पास ये आई ट्रिपल की आप लोगों ने देखी थी अभी, वो मेन ब्रांच है हमारे पास. जब आप लोग उसको फोर्क करोगे ना, आप लोगों के पास एक कॉपी आएगी और फिर आप लोग उसकी ब्रांच का नेम बदलोगे कि आप क्या ऐड कर रहे हो, जो कि आई थिंक उसका फॉर्मेट होगा ये कि आप लोगों ने अपना नेम, रोल नंबर, सेमेस्टर लिखना होगा. दैट इज ब्रांचिंग. स्टेजिंग बेसिकली क्या होती है, जब आप व्हेन यू आर रेडी कि आपने जो भी चेंजेस किए उस कोड को और आपने पुल रिक्वेस्ट बनानी हो ना, तो आप कमेंट्स, छोटे छोटे कमेंट्स लिखते हो कि यार मेरा जो कोड का ये हिस्सा है ना, वो ये कर रहा है आपके कोड बेस को. लेट मी ओपन अप चैट एज वेल एट द साइड एज वेल. ओके, तो आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि स्टेजिंग का मतलब यही मतलब होता है कि आपने बेसिकली बताना है कि रिविजन्स करनी होती है कि आपके कोड से ये फ़र्क पड़ रहा है, आपकी मेन कोड को, आपकी ब्रांच कोड की वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है मेन कोड में. If you want to add code to your, if you want to add your code to someone else's project, you'll open a pull request, which is I just explained कि pull request क्या होती है. आप बंदे की repository copy करते हो अपने पास, you edit something on it, and when once you're happy कि भाई हाँ अभी मैंने अच्छे तरीके से edit करके एक function बना दिया है, आप एक pull request बनाते हो कि यार मैं तुम्हें कोड भेज रहा हूँ, तुम एक्सेप्ट करो. और मैं एज अ एडमिन पेज या ऑर्गेनाइजर का ओनर हूँ ना, मैं उसकी पुल रिक्वेस्ट को देखूंगा और मैं कहूँगा ठीक है, इसका एक कोड अच्छा है, आई विल एक्सेप्ट दैट, मैं उसको मर्ज कर दूंगा अपनी मेन ब्रांच के साथ. तो योर फीचर ब्रांच विल बी मर्ज विद माई मेन ब्रांच. दैट इज हाउ. ये बेसिकली अब जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया ना, दैट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ये सारी वर्जन कंट्रोलिंग होती है ताकि नो वन हैज़ आउटडेटेड कोड, हर किसी के पास अपडेटेड किस्म का कोड फॉर्मेट होगा. इफ दे अप्रूव इट दे विल मर्ज योर ब्रांच इनटू देयर मास्टर ब्रांच. अच्छा, बाय द वे, GitHub it's not called master anymore, it is called main branch because master has a lot of bad connotations to it, तो masters नहीं कहते, अब इसको main branch हम कहते हैं. ये भी हम करने लगे हैं आगे. अच्छा, let's move forward. Oh, great, that's it. That's how you work with Git. Let's try it using GitHub. अब now follow along. अब हमने सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है. Let me pull up GitHub. ठीक है, गिटहब का पेज खोलें. लेट्स टेक अ 5 minutes ब्रेक, थोड़ा बहुत ज़रा चिल हो जाए, ज़रा इजी हो जाए. अब हम असल काम आ गए, जिसमें आपने थोड़े बहुत बटन दबाने हैं, आपने थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है और समझना है चीज़ों को कि कैसे करते हैं. तो 5 minutes ब्रेक लेते हैं. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पोस्ट देम इन चैट, और ऑल्सो लेट मी नो अगर मैं तेज़ ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, ये बता दें मुझे. वी आर हैप्पी टू टेक क्वेश्चन. यस, 37. एंड लेट मी ड्रिंक सम वाटर. बाय द वे, इफ यू स्टिल वंडरिंग कि इस वर्कशॉप का आपको फ़ायदा क्या है, एट द बिगिनिंग आई सेड कि जब आप कंपनीज में काम करने जाएंगे, दे यूज़ वर्जन कंट्रोल. अभी हम आपको बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिखा रहे हैं यूज़ करना, कोड को कैसे यूज़ करना है. व्हाट आई वुड एम्फसाइज इज के आप उनके जो पहले सेमेस्टर, खास तौर पे पहले सेमेस्टर वाले, एक गुड प्रैक्टिस बनाएं कि आप उन जो भी फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपने, वो गिटहब पे बनाएं. सारे गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, रिपॉजिटरीज बना के 3 बंदों की आई थिंक ग्रुप्स बनता है, 2 से 3 बंदों का आई थिंक मिनिमम, आके जो भी इंस्ट्रक्टर कहेंगे. Really informative session. Thank you so much. Keep it up, mate. अच्छा, थैंक यू फॉर द पॉजिटिव फीडबैक. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके जो भी इंस्ट्रक्टर हैं ना, जितने भी ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप लीडर एक हो आपका, वो एक रिपोजिटरी बनाए और आप उन सारे जो है ना, कि सारे जो है ना उस पर कमिट करें, कमिट्स करके, पुल रिक्वेस्ट करके, इस तरह करके दिखाएं, और फिर जब आप अपने सर को दिखाएंगे कि आपने कितने प्रोफेशनल तरीके से किया है, इट विल लुक गुड. Please guide how to create account on a mobile. Error is coming. I would recommend using computer, I guess. अगर आपका मोबाइल पे एरर आ रहा है, बाय द वे मोबाइल पे एरर क्या आ रहा है? आर यू यूजिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज ईमेल या कोई पर्सनल ईमेल यूज़ करें? दिस पेज इज नॉट शोइंग ऑन माई स्क्रीन. व्हाट पेज? 23, बी प्रिसाइज. ये जो मैंने खोला हुआ है, आर यू टॉकिंग अबाउट द मेजर लीग हैकिंग कोड क्लेवर गिटहब पेज? अगर नहीं शो हो रहा तो मैं लिंक भेज देता हूँ, आपके पास खुलना चाहिए. ओ बाय द वे, ये हो सकता है ना खुले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है गिटहब का, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अकाउंट ना लो. सेम एरर ऑन बोथ ईमेल्स. दैट इज न्यू. बाय द वे, ये कोड हम लोगों के लिए जो शायद नहीं आए अभी तक. This is the repository that they will be using. Okay, 5 minutes. Yep. Let me quickly check few socials. Okay.
इन दी ओके, बाय द वे, अगर किसी का भी मसला आ रहा है, टेंशन ना लो। ये नहीं है कि मीटिंग खत्म, वर्कशॉप खत्म हो जाएगी हम परा मारेंगे सारों को, ऐसी कोई सीन नहीं है। एंड पे हम कॉल पे लेंगे सारों, कोशिश होगी कॉल पे एक दो को लेने की, ताकि मसले हल करवा लें लोगों के। तो मसला नहीं है। ओके यू वेट, ओके दैट्स गुड। ओके लेट मी पुल अप स्लाइड्स एज वेल। हमने सबसे पहले तो फोर्किंग करनी होगी एंड देन वो कमिट। अच्छा, अच्छा जी। बाय द वे दिस इज द मोस्ट, आई shouldn't say this but enthusiastic chat, like रैंडम क्वेश्चंस पूछें यार, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिहाज से ही हो। Get a thumbs up from me as well. तो अच्छा चलो, regardless, आगे चलें I guess, क्योंकि questions, I don't see any questions. Leaving. Okay. Yeah, chat is empty. That is so dry. अच्छा regardless, अब आप लोग आ जाएं मेन पेज पे। हमारे पास जो आप लोगों को रिपोजिटरी का लिंक मैंने भेजा था उसकी तरफ आ जाएं। अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है, फोर्किंग। अगर आपने किसी भी, लाइक, डू यू लाइक टाको कैट्स? यस आई लव टाको कैट्स, दैट इज स्पेल्ड बैकवर्ड्स एज टाको कैट्स एज वेल। तो अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है काम, हमने एक फोर्क करनी है रिपोजिटरी जो हमारे पास आई ट्रिपल बी की हमारे पास पड़ी हुई है। तो उसको फोर्क करने का क्या तरीका है, अब उनको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी वेब पेज पे। इफ़ यू लुक टू द टॉप राइट, दिस साइड ऑन द राइट साइड, इट सेज फोर्किंग। आपने इसको फोर्क करना है, ठीक है। यू प्रेस ऑन इट, फोर्क, एंड इट शुड टेक अ वाइल, लाइक एक 2-3 मिनट की लोडिंग होगी, उसके बाद वो फोर्क करेगा उसको। एंड जब उसको फोर्क कर देंगे ना, अब मेरा तो देखें एकदम से वो खुल गया अकाउंट। देखें, जो पिछली रिपोजिटरी पड़ी थी वो आई ट्रिपल बी के पास पड़ी हुई थी। अब देखें मेरा अकाउंट है उस्मान एमएलएच का, अब मेरे पास पूरी रिपोजिटरी आ गई उनकी। द इंटायर रिपोजिटरी मेरे पास कॉपी बन के मेरे पास आ गई है। आई हैव नाउ द इंटायर रिपोजिटरी फ्रॉम आई ट्रिपल बी। आप लोग भी ये करें। आई वांट टू सी एटलीस्ट 5 or 6 forks ऑन द लिस्ट। so take 2 minutes जिन to figure out how to fork। टॉप राइट पे लिखा होगा, उनके पेज पे जाके आपने बस fork का बटन दबाना है। once you do that, उसके बाद हम ब्रांचिंग की तरफ जाएंगे। I only see one forking. One person just forked. No one else. Oof. I think I'm talking too fast. Okay, एक ही बंदे ने अभी तक मेरे ख्याल में fork किया, या शायद किया ही किसी ने नहीं होगा। तो There are please 14 folks still yet. please repeat the process. अच्छा ठीक है। Forking again. I can't fork. Refresh. There are 10 forks. That's good. That's nice. Oh, that's good. That's good. That's better. Nice. ठीक हो गया तो अच्छी बात है। आप लोगों के पास फोर्क, बाय द वे, जो बंदा कह रहा है रिपीट कर दें। वंस यू फोर्क अ रिपोजिटरी, आप उसको फिर से फोर्क नहीं कर सकते। यू कैन ओनली ऐड मोर ब्रांचेस टू इट, आप उसको फिर से फोर्क कर नहीं सकते। तो आई कैन नॉट फोर्क इट अगेन। फॉर दैट आई हैव टू मेक अ न्यू अकाउंट। इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो हमने अब देखो फोर्क कर लिया एक रिपोजिटरी। जस्ट क्लिक द फोर पर, यस एग्जैक्टली, इधर टॉप राइट पे देखें सामने लिखा हुआ है फोर्किंग, तो आप फोर्क कर लें कोड को। नाउ दैट यू फोर्कड, लेफ्ट साइड पर आ जाएं, कोड सेक्शन में लिखा हुआ है मेन। हमने मेन ब्रांच पे काम नहीं करना। लाइक आई सेड, हम जब भी कोई फीचर ऐड करेंगे ना कोड में, तो वी विल हैव अ डिफरेंट ब्रांच। तो यू प्रेस ऑन मेन, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है मेन, आप इसको दबाएंगे और फिर आप नाम देंगे अपनी ब्रांच का। अब आप लोगों के केस में आप लोगों ने क्या करना है, ऑल्सो टाइप इन चैट, आप लोगों ने अपनी ब्रांच का नाम देना है योर रोल नंबर, लाइक योर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं आपके, रोल नंबर, नेम एंड योर सेमेस्टर। ठीक है, आपने अपनी ब्रांच का नाम ये देना है अपने आखिरी 3 डिजिट्स के साथ, अपने नाम के साथ, फर्स्ट नेम के साथ, और सेमेस्टर 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है, 1 2 3 5 एंड 6 जो भी है आपने, बल्कि ऐड भी करके था सच्ची। मेरा क्या है, 088 डैश, नेम इज़ उस्मान डैश, माई सेमेस्टर इज़ 6। ये इधर फिर नीचे आ रहा होगा क्रिएट ब्रांच। ठीक है, आपने फिर इसको दबाना है। और वेट 10 seconds ताकि यू गाइस कैन बी अप टू स्पीड, and hopefully you guys have branch figured out। अब आप करोगे इसको क्रिएट ब्रांच। वंस यू डू दैट, एक ब्रांच बन जाएगी आपके पास। नीचे तो वापस जाएंगे, अभी तो कोई चेंज नहीं आया मेन्यू में, सारा कुछ वही है, बस अलबत्ता यहाँ पे आप अगर जाएंगे ना टॉप लिखा, अब मेन नहीं लिखा हुआ, अब ब्रांच लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, नाउ यू आर गोइंग टू बी एडिटिंग द कोड, जो काम आप सबने करना है। तो आप जाएंगे source.cpp पे क्लिक करेंगे, जो फाइल आपने एडिट करनी है, यू गो ऑन इट। ठीक है, आपके पास बेसिकली ये पूरी फाइल आ जाएगी। यहाँ पे पहले से 3 एंट्रीज हुई हुई हैं, यू शुड सी के यहाँ पे 3 एंट्रीज हुई हुई हैं। आपने प्लीज़ इसको मिटाना नहीं है। ठीक है, ये अगर आप मिटाएंगे और फिर हमें वापस कोड भेजेंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी, फिर वी वुड हैव टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स।
आई वुड रिकमेंड कि आप ना करें, आप वजह ये करने के ना, आई थिंक देयर इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हियर जो कि नहीं होना चाहिए। रिगार्डलेस, इसको दफा करें। तो इधर टॉप राइट पे पेंसिल आइकॉन बना होगा। पेंसिल आइकॉन से आप किसी भी कोड को एडिट कर सकते हैं किसी भी रिपोजिटरी में। यू प्रेस ऑन दैट बटन, प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली एडिटर खुल जाएगा आपके पास। नाउ दिस इज अ सी प्लस प्लस कोड, लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है क्योंकि दे आर वेरी बेसिक टू कोडिंग। तो सिंपल सा सी प्लस प्लस का कोड है, आप लोगों को पता है सी आउट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। सो अब मैं आप लोगों के सामने करने लगा हूँ। सी आउट रैंडम रोल नंबर देता हूँ कोई भी, 13-0 and 025, आई डोंट नो हु दैट इज, someone's name, some semester, ठीक है, semester, yes some semester, अच्छा। Or you can copy and paste it as well, but I wouldn't recommend doing that, just type it as well, it's better, it's good practice। तो आपने ये line लिखनी है, that is all you're going to be doing, that is how you're going to be collaborating on code as well। ये मतलब ये बड़ा basic, बड़ा hands down process है आप लोगों के लिए, लेकिन this is how you basically, okay, I think there is an error here that I should figure out, okay, there we go। तो आपने अपना बेसिकली रोल नंबर ऐड करना है और अपना नाम ऐड करना है और फिर अपना सेमेस्टर ऐड करना है। ये छोटा सा कोड का स्निपेट यूज़ करना है, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट इरेज, आई डोंट नीड टू इरेज दिस। फिर आपने बॉटम पे जाना है, फॉर सम रीज़न ये फाइल जो है ना बहुत लंबी बन गई है। फिर आपने बिल्कुल बॉटम पे आना है। अब आगे आपकी कमिट चेंज में जो सी आउट, यस वो एरर मैंने सही कर दिया था मेरे ख्याल में, एक सेकेंड, आई थिंक यस सी आउट कर दिया। थैंक यू फॉर नोटिसिंग, आप टेंशन दे रहे हैं, अच्छी बात है। ओके अब आ जाएं कमिट चेंजेस पे। ये जो मैं शुरू से लगाऊँ ना, कमिटिंग कमिटिंग कर रहा हूँ किसी कोड में, मेरा बेसिकली इधर मतलब ये कमिटिंग का कि आपने अब यहाँ पर जो कमिट करते हो ना, आप इधर अपने कमेंट्स लिखते हो कि आपका कोड कर क्या रहा है। मतलब आपने जो ऐड जो ब्रांच भेज रहे हो वापस में इनको, उसका क्या मतलब है। सो दिस इज कमिटिंग। अपडेट सोर्स डॉट CPP, अब इसमें कमेंट लिखूंगा कि आई एम एडिंग ए रोल नंबर। आप ये लिख दो, आपने लिखना है कुछ और, लिखना है आप कुछ और लिख दो। और यहाँ पे आप बेसिकली रिविजन देते हो अपने पूरे कोड का, मतलब ब्रीफ। ऊपर आप देते हो हेडिंग कि मेरा कोड कर क्या रहा है, नीचे आप जाते हो आप पूरा प्रॉपर बेयर बोन्स तक एक्सप्लेन करते हो कि यार मेरा कोड ये कर रहा है। हमने ये नहीं करना ऑब्वियसली, लेकिन कर सकते हो आप, दैट इज हाउ यू कमिट चेंजेस। तो आप कमिट करोगे चेंज अपना, यहाँ तक पहुँच गए होपफुली सब तक। आई एम एडिंग अ रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर एज वेल। तो ये हो गया हमारे पास। और कमेंट्स में आई गेस मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि दिस लाइन ऑफ कोड इज एडिंग ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। ओके, तो होपफुली आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब हम करेंगे इसमें कमिट चेंजेस पे दबाएंगे। आई विल कमिट द चेंज। अब इससे होगा ये, तो अब मैंने कमिट कर दिया है होपफुली। यस अब कमिट हो गया। अब वो जब आप कमिट करते हैं ना, वो रिफ्रेशेस और फिर आपको वो आकी वो फाइल दिखाते हैं कि आपने चेंज क्या किया है। वो आपको चेंज यहाँ पे नज़र आ जाना चाहिए। प्रॉब्ली अभी अब मैंने जब कमिट किया, फिर उसके बाद आप लोग जब कमिट करेंगे और आप लोगों की पुल रिक्वेस्ट आएंगी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे क्योंकि हर किसी ने जो है ना एक ही लाइन पे लिखा होगा। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे ना, कमिट करने से पहले जो है ना रैंडम लाइन्स पे लिख ले। कोई एक बंदा 50 लाइन पे लिख ले, कोई एक बंदा 17, कोई ऊपर नीचे करके लिख ले, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, वरना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी। ओके, सो नाउ दैट वी कंट्रीब्यूटेड, सॉरी कंट्रीब्यूट कह रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने पुल रिक्वेस्ट बनानी है। हाउ डू यू डू दैट। आपने अपनी एडिट कर ली कोई भी कोड फाइल जो है, आपने वापस कोड सेक्शन को दबाना है। आपने देखेंगे कि यहाँ पर जो है ना पुल रिक्वेस्ट की ऑप्शन बन गई है। जब भी आप कोई भी चेंजेस अपने ब्रांचेस में बनाते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना इधर पुल रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ जाती है। सो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यू सिंपली क्लिक पुल रिक्वेस्ट और आई एम एडिंग रोल नंबर। ये वो देखिए मेरे वही कमिट के कमेंट्स आ गए हैं और वो जो प्रीव्यू वगैरह होता है। और फिर ये सेक्शन खुल जाएगा और फिर आप कहेंगे क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। ठीक हो गया। आई थिंक एक ऑप्शन थी जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए कि अलाउ, एक ऑप्शन होगी, चेक बॉक्स होगी, इसमें लिखा होगा कि अलाउ द मेंटेनर्स टू एडिट योर कोड। डेफिनेटली चेक, उस बॉक्स को आपने चेक करना है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा ना तो हम उसको रिजॉल्व कर सकेंगे। आप लोगों ने रिजॉल्व करना पड़े तो उस चेक बॉक्स को ज़रूर चेक कर लेना।
नीचे करके होगी कहीं ऑप्शन। अच्छा, अब आप अपनी कैन आई रिपीट पुल रिक्वेस्ट? हाँ, क्यों नहीं हम एक और नई ब्रांच बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, शुरू से करते हैं। ये देखो, I'll make a new branch. I'll call this Taro. मैं अपने अकाउंट पे जाके खोलता हूँ इसे, ये रहा। एंड I'll make a new branch. अब बल्कि मैं शुरू से कर लेता हूँ, एक और नई ब्रांच बना लेते हैं। Add role 2, ठीक है, नई ब्रांच बना लेते हैं। Create branch, add role 2। अब वो सेम प्रोसेस में जा रहा हूँ जो शुरू से किया था हमने, ब्रांच जैसे बनाई थी। अब हम ब्रांच में आ गए। अब हमने आगे क्या करना है, source.cpp को क्लिक करना है, पीछे जाएंगे, कोड को एडिट करना है हमने फिर से। जैसे मैंने पहले कहा था कि रैंडम लाइन पे करें, तो ये नीचे जाके मैं लाइन नंबर 30 पे लिख रहा हूँ अपना सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है। सम इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी हैव डोंट हैव इनफ टाइम, तो मैं जल्दी से लिख रहा हूँ सम इन्फॉर्मेशन एंड तो ये हमारे पास छोटा सा कमिट आ जाएगा। यहाँ तक आप पहुँचे होंगे होपफुली। फिर आपने नीचे जाना है कमिट चेंजेस में, आप इन्फॉर्मेशन दोगे, इन्फॉर्मेशन बीइंग पास्ड ऑन, कमेंट्स नहीं, बेसिकली कमिट्स जो भी होते हैं हमारे पास। कमिट चेंजेस आ गए, कमिट चेंजेस को आप दबाएंगे, ठीक है। फिर आपका ऑटोमेटिकली वो फाइल में चेंज आ जाएगा आपकी रिपोजिटरी में। फिर आपने टॉप लेफ्ट पे कोड को दबाना है फिर से। जब आप कोड को दबाएंगे ना, आपने इसको नहीं दबाना, अगर बाय एनी चांस अगर किसी ने इसको दबा दिया, आपने कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट को नहीं दबाना। नीचे एक ऑप्शन होगी, ये दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ IEEE के, दैट डजंट मैटर रिगार्डलेस। ये द राइट पाक ऑप्शन आ जाएगी पुल रिक्वेस्ट की, आपने फिर इसको दबाना है। ये जब आप किसी भी अपनी अपनी नई ब्रांच बनाते हैं और उसमें कोई कोड चेंज करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली जब आप कोड सेक्शन में जाते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने पुल रिक्वेस्ट करनी है कि नहीं करनी। तो आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ गई होगी, तो यू प्रेस दैट एंड इट विल टेक अ व्हाइल। वही आपका कमिट आ गया, आपका कमेंट आ जाएगा। सम कमेंट लिख देता हूँ जल्दी से। और ये वो चेकबॉक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया था। तो ये वो चेकबॉक्स है, कहता है अलाउ एडिट्स बाय मेंटेनर्स। मेंटेनर्स कौन होंगे? BULC के एडमिन प्रिविलेजेस इनके पास होंगी, जैसे मैं हो गया और मेरे IEEE की एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। अभी जब आप पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही होंगी तो होपफुली हम रिजॉल्व कर पाएंगे उन्हें। तो अलाउ एडिट्स बाय मेंटेनर्स, आपने इसको चेक रखना है, ठीक है। अब आप करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखें, हाँ, अब आई कैन सी 7 पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी टू दिस कोड। प्रिंट माई नेम इज सेमेस्टर, नाइस, अरमगान दाऊद, मेरा आ गया समीर ताहिर, JZBN, जैन अहमद, साद जावेद, ठीक हो गया। ये देखें आप लोग, ये देखें लोगों की पुल रिक्वेस्ट मुझे मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन लेकिन ये IEEE की BLC की पेज पर हैं। अब ये आप लोगों की पुल रिक्वेस्ट हैं, अब इनको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये वो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन जो जिनके पास एक्सेस है इन पेजेस का। अब मैं क्या करूँगा, आई विल पुल दी IEEE पेज, IEEE BULC की रिपोजिटरी में पुल करूँगा यहाँ से। मैं जल्दी से बस खोल लूँ इसे। अच्छा, तो अच्छा, बाय द वे, ये मेरा मेन गिटहब का अकाउंट है। अगर आप लोगों को गूगल क्रोम में अभी नज़र आ गया होगा, तो ये मेरा मेन वो है, क्या कहते हैं, मेरा गिटहब अकाउंट है। एंड आई एम ऑल्सो दी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो IEEE BULC की है। अब मैं यहाँ जाऊँगा। अब ये देखें, इस प्रोजेक्ट पे मुझे पुल रिक्वेस्ट 11 आ चुकी हैं। एडिड माई नेम ऑन द लिस्ट, आई एम एडिंग अ रोल नंबर एंड सेमेस्टर। तो ये देखें, ये जो अकाउंट था ना, ये कोलैबोरेट, ये था कंट्रीब्यूटर। अभी जो आप सब ने किया ना, आप लोगों ने बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट किया है। यू कंट्रीब्यूटेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ये आप लोगों ने अभी किया है। गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन ओपन सोर्स। तो आप लोगों ने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जो IEEE ने शुरू किया था, जिस पे आप लोगों ने किया है कंट्रीब्यूट। तो ये मेरा अकाउंट था टेस्टिंग, जिसके जिसके थ्रू मैंने दिखाना था कि आप लोग एज स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन मैं आप लोगों की पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करूँगा, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो ये मैं अपने ओरिजिनल जो अकाउंट है उस पर जा रहा हूँ, और ये देखें आप लोग सारों की मुझे पुल रिक्वेस्ट आ रही है। लेट मी रिफ्रेश, ठीक है, अभी तक 11 आई है। आई थिंक 11 इज अ गुड स्ट्रेंथ। ठीक हो गया, क्लियर है सबके लिए पुल रिक्वेस्ट? किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा। तो ये देखें, हसीबुल्ला हमारे पास आ रहे हैं बंदे। हम इनकी पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और मर्ज करते हैं अपनी मेन ब्रांच में। लेट्स डू दैट। तो ये बाय द वे सारों की आ गई हैं, तो हम हसीबुल्ला की एक्सेप्ट करते हैं। ये देखें,
मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब इन्होंने जो कोड ऐड किया ना, इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी जगह पे लिखा है कोड जहाँ पे किसी और ने नहीं लिखा अपना, तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रही। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं इनका कोड देख सकता हूँ, इनकी कमिट्स देख सकता हूँ कि इनके कमेंट्स क्या हैं, इनकी फाइल्स देख सकता हूँ मैं बैठ के कि इन्होंने चेंजेस क्या कहाँ पर क्या लाई हैं। देखते हैं। Got it। ये देखें, ये हसीबुल्ला का मेरे पास राइट पे नाम आ गया कि ये उन्होंने कमिट किया है सामने, और चेंजेस उन्होंने कोई नहीं लाई इधर बाकी मेरे किसी भी जगह पे। सो आई कैन ऑल्सो सी द चेंजेस दैट यू गाइस मेक। ये हसीबुल्ला का हमारे पास आ गया है कमिट, या बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू माय कोड। बाय द वे हसीबुल्ला, आप जो भी हैं गाइस, इफ यू आर लेफ्ट बिहाइंड लेट अस नो। हसीबुल्ला इधर जो भी है, थम्स अप फॉर यू, आपका सबसे पहला कमिट जो है एक्सेप्ट होने लगा है। अच्छा, ना एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो ठीक हो गया। नाउ हसीबुल्ला का हम एक्सेप्ट करने लगे हैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट। व्हाट मर्जिंग विल डू इज के वो हसीब की जो ब्रांच उसने बनाई थी ना, क्या कहते हैं अपने कोड की, वो हमारी मेन ब्रांच में अब आ जाएगी। उससे क्या होगा कि ही विल बी नाउ मार्क्ड एज अ कंट्रीब्यूटर हमारी रिपोजिटरी का, या बेसिकली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रिपोजिटरी का कंट्रीब्यूटर विल बी मार्क्ड एज हसीबुल्ला। आई एम गोना मर्ज एंड पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज, और कंफर्म हो गया। यस, इट इज़ नाउ कंफर्म्ड। तो अब अगर आप लोग रिफ्रेश करके BUSD के पेज में जाके सोर्स डॉट CPP खोलेंगे, तो यू कैन सी कि हसीब लगा कोड जो है हमारे पास कंट्रीब्यूटेड आ गया है ना। ये सारा वर्जन कंट्रोल का कमाल है, कि उसने जो है एक्सेप्ट, उसने पुल रिक्वेस्ट की अदर देखें, अब उसके पास पूरी रिपोजिटरी पड़ी होगी अभी भी अनएडिटेड किस्म की, वो उसको उसमें जो करना चाहे करे। लेकिन कोई स्मॉल पीस ऑफ कोड जो वो हमें भेजना चाहता है, उसने पुल रिक्वेस्ट के थ्रू हमें भेजा, और वो हमें आ गया और हमने एक्सेप्ट कर लिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो हमारे पास यहाँ पे कोड आ गया। अब ये अपडेटेड कोड है, ये सबके पास पड़ा होगा। नाउ यू गाइस कैन फोर्क दिस अगेन, या इसकी नई मास्टर ब्रांच बना सकते हैं या मेन ब्रांच बना सकते हैं। तो अब मैं बाकियों की भी एक दो और लोगों की भी कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए। अच्छा, तो क्या कहते हैं बाकी जो लोग पीछे रह गए हैं, ज़रा अपनी पुल रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। मेरा 2 मिनट की ब्रेक ले लूँ, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। ओके, आई एम बैक। अच्छा, बाय द वे मैंने एक और बंदे की पुल रिक्वेस्ट खोली है। एक और छोटा सा पॉइंटर में बीच में भूल गया था बाय द वे। आप लोग फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स हैं इस रिपोजिटरी के, तो अब्दुल्ला जैब जो भी है, यू बीन गिवन अ थम्स अप इमोजी एज वेल, और आपको कॉमेंट भी मिल गया कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में आपको वेलकम किया गया है IEEE की। तो यूर फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर, ये बैच आपकी प्रोफाइल को अब लग चुका होगा। सो आई एम गोना ओपन योर प्रोफाइल एंड सी कि अगर वो शो हो रहा है कि नहीं। मेरा ये देखें, आपकी प्रोजेक्ट्स में शो हो गया 3 कंट्रीब्यूशन इन द लास्ट ईयर। आपकी कंट्रीब्यूशन सारी शो हो रही हैं, ये दिखाया जा रहा है कि आपने किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अभी तक थ्रू आउट जब आप लोग करें ना, ये तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे करें ना, इसका फ़ायदा क्या है? आगे जब आप जाके इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और लैंग्वेजेस पे काम करेंगे, लेट्स से आपको ओपन सीवी या टेंसर फ्लो की AI के एल्गोरिथम्स मिल जाए, आप उस पर काम करते हो,
और आपकी ये क्या कहते हैं ये कंट्रीब्यूशन आपकी शो होंगी। ये अब्दुल्ला जैफ की प्रोफाइल है, इधर जो भी हैं हमारे पास। देखिए उनकी कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही है कि उन्होंने किधर रिपोजिटरी बनाई है, और उन्होंने पुल रिक्वेस्ट बनाई है, और मैंने एक्सेप्ट भी किया। उनकी उनकी पूरी हिस्ट्री आ रही है नज़र। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप किसी कंपनी के पास जाएंगे काम करने के लिए, वो आपसे पूछेंगे आपने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है ओपन सोर्स को, या कोलैबोरेशन की हुई है। सो यू कैन लिटरली शो योर इंटायर गिटहब हिस्ट्री। आप दिखा सकते हो कि मैंने जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, मैंने पाइथन के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, सी प्लस प्लस पे काम किया हुआ है। दिस इज बेसिकली ह्यूज पोर्टफोलियो फॉर यू गाइस, और ये बहुत बूस्ट देता है आपको करियर में। अच्छा, तो that is how you show your GitHub to anyone। अच्छा, बाय द वे मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँ ताकि आपके पास बैच भी आ जाए। बाय द वे, अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को पहले बात की थी ना, कि अगर एक बंदा एक लाइन पे कोड लिखे और दूसरा भी उसी लाइन पे लिख दे, और फिर आप भेज दें आगे, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब मैं एज अ मेंटेनर जो है ऑफ द कोड, बेस कोड, मैं आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देर 200 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, ये देखें, बेसिकली हमारे पास जो आ रही है, अब्दुल्ला ने 35 2, ये उनका कमिट है, और उनका देखें कोड उन्होंने कहाँ लिखा है। आई थिंक ये लिखा है उन्होंने। तो इसको हम कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं आई गेस। लेकिन ये एरर्स को ऐसे देना नहीं चाहिए, दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन वी कैन erase दिस। सो अच्छा, सो व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस इज के किसी और ने जो है ना लाइन नंबर, जिस लाइन पे भी ये जो हमारे जवेद ने जो लिखी हुई थी ना अपनी लाइन, तो मैंने उसको बस बेसिकली 2-3 कमेंट्स और नीचे लाए, और मैंने बेसिकली अब वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो मिटा देने हैं चुप करके। इसका कॉन्फ्लिक्ट आप रिजॉल्व कर सकते हैं, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, कि आप मेंटेन कर सकते हैं कोड। इसका दूसरा तरीका, दूसरा नुकसान ये था कि अगर आप अलाउ मेंटेनर्स को ना करते ना, तो आपको खुद रिजॉल्व करना पड़ता। लेकिन अब चूंकि अब आपने अलाउ किया था, तो एज अ मेंटेनर मैं कर रहा हूँ उसको रिजॉल्व। तो आपका मेरे कोड में हमें शायद लाइन 30 से उठा के 53 पे रख दिया है। होपफुली दिस रिजॉल्व द प्रॉब्लम। इफ इट डजंट, we're kind of stuck। ओके, वी कैन मार्क दिस एज रिजॉल्व। ओके, देखें अब आपकी जो है ना कमिट हो गई है, चेंज हो गया आपका। मैंने जो ऊपर नीचे लाइनें किया ना, तो आपकी कमिट हम कर देंगे मर्ज। अब कमिटिंग मर्ज नाउ, अब्दुल्ला जैफ, आपकी आपका भी कोड हमारे पास पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बावजूद आ जाना चाहिए। अब्दुल्ला जवेद नहीं आया हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक इट्स गोना टेक सम टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने के बाद जो है ना, क्योंकि देखिए आपके ये हसीबुल्ला तो आ गए हैं, अब्दुल्ला जैफ भी आ जाने चाहिए अब तक, लेकिन फॉर सम रीज़न वो नहीं आ रहे। लेट मी सी। Oh, I have to accept your merge as well. Yeah, merge pull request. Merge did not fail. We can merge this failed. Reroll the page before trying. Yes, आपकी ऐड होगी। अब जाए आपकी भी कंट्रीब्यूशन ऐड हो गई है टू द कोड। आपका नाम, अब आपकी प्रोफाइल अगर खोलूँ ना मैं, तो where is your profile? Why is your profile not opening? Oh, okay, ये रही। Let me reload this. आपकी लेफ्ट साइड पे जाना, होपफुली ऑर्गेनाइजेशन आ जानी चाहिए कि आपने जो है ना इन पे वो कर दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन का बैच आ जाना चाहिए आपके पास। रिगार्डलेस, अच्छा अगर अभी भी नहीं आती ना तो कोई मसला नहीं है। बात वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी आपके पास, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो दिस इज बेसिकली गिटहब। आप लोगों ने बेसिकली हमारी सारी जो प्रेजेंटेशन थी, इसका ये मतलब था कि आप लोग गिटहब की वर्कफ्लो समझाएं। जो अभी स्लाइड्स में बेसिकली वो सारा वही एक्सप्लेन करेंगी आपको, कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह कैसे करनी है। नेटवर्क आई एम नॉट गोना गो थ्रू द स्लाइड्स, क्योंकि स्लाइड्स बहुत मीडियोकर तरीके किसी को समझाना किसी भी चीज़ को। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। अच्छा, देयर इज़ नो रिव्यू एंड क्विज। और दूसरा गिटहब एंड कमांड लाइन हम आप लोगों को ऑब्वियसली जैसे स्टार्ट में कहा था कि नहीं करवा रहे, तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने करना। आप लोग गिटहब पे खाली काम करें, दैट्स इनफ। Quick recap: Git is a version control system allowing multiple people to collaborate on code. GitHub adds features to Git and provides a web interface. Command line Git uses proper proposed changes without web interface. वही बताया जैसे command line Git command line use करता है आप, और GitHub हमारे पास web interface use करता है। What you learned today, basically आपने quiz में जाके देना है, which you don't need to give, कोई ज़रूरत नहीं है देने की आपको। Next steps हैं आगे, socials हैं and nothing else. So ये हमारे पास basically सारी workshop थी GitHub की। और if you guys have any more questions just ask। और मेरी जो टीम है अब वो आप लोगों के साथ थोड़ी देर इंटरेक्ट करेगी, आप लोग अपने माइक्स खोल सकते हैं, क्योंकि
सबसे मेजर पॉइंट तो मैं भूल गया। आप लोगों का स्टूडेंट डेवलपर पैक, आई एम सो सॉरी, आप लोगों का डेवलपर पैक जो आप लोगों को लाजमी चाहिए। अच्छा, सारे जो इधर बैठे हुए हैं ना, अब तक जो बैठे हुए हैं, थैंक गॉड आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे जो मेन चीज़ आप लोगों का डेवलपर पैक आप लोगों को दिखाना था मैंने। अच्छा, जिन लोगों ने अपनी बैरिया की ईमेल से साइन इन नहीं किया ना और खाली पर्सनल अकाउंट किया है, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, आप लोगों ने प्लीज़ मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, आपने फिर बॉटम में जाके इधर ईमेल्स का टैब होगा, आपने उसको दबाना है। और आपने यहाँ पे एक ऐड ईमेल का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल अभी डाल लें, और भी हम आपको दिखाते हैं कि स्टूडेंट डेवलपर पैक भी कैसे लेना है। आप बस अपनी ईमेल डाल दें यूनिवर्सिटी की जल्दी से। मेरी पहले से डली हुई है, देखें सेम जैसे आप लोगों की होगी, इस तरह का फॉर्मेट होगा। ये डालें ताकि आपको डेवलपर पैक तो मिले ना सही। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी का ही है इस इवेंट का। दिस इज़ दी ईमेल। जब डाल लें तो बता देना हमें ताकि हम आगे चलें। फिर आप लोगों को एक लिंक देता हूँ स्टूडेंट डेवलपर पैक का। जब आप अपनी ईमेल ऐड कर लेंगे ना अपने अकाउंट में, गो टू दिस लिंक जो मैंने चैट में भेजा है। ठीक है, एंड वंस यू डन विद दैट प्लीज लेट मी नो। यू गाइस आर स्टिल हियर, बड़ी बात है। काफ़ी लोग बैठे हैं अभी, जितने भी हैं। एक्सक्यूज मी। किसी एक का भी हो जाए तो बताना, सो आई कैन कंटिन्यू नाउ। किसी एक का भी अगर ईमेल लग जाए। बाय द वे, अगर इफ समवनस लॉस्ट, बाय द वे, अगर आप फिर मेन पेज में घूम रहे हैं गिटहब के राइट साइड पे सबसे टॉप राइट पे आपका आइकॉन होगा, बॉटम में जाएं, सेटिंग्स लिखा होगा। आई हैव एड, ओके गुड। रोल नंबर 13 ने अपनी जो है ना ईमेल ऐड कर ली है, दैट इज़ अ गुड थिंग। सेटिंग्स में आपने जाना है, इधर लेफ्ट साइड पे ईमेल लिखा होगा, ईमेल को दबाना है। हाउ डू वी वेरीफाई डॉट एच, यू डोंट नीड टू वेरीफाई इट, वो वेरीफाइड ही होती है आई थिंक। और अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि इस ईमेल को गिटहब के लिए वेरीफाई कैसे करना है, ये जो डॉट एडू वाली ईमेल है ना आपकी, ये है आउटलुक की एक ईमेल है। सो गो टू outlook.com और आप उसी ईमेल से साइन इन करें तो ऑटोमेटिकली आपका इनबॉक्स खुल जाएगा, होपफुली। .edu सॉरी, बल्कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ आउटलुक पे। ये देखें, ऊपर मेरा रोल नंबर भी आ रहा था। आउटलुक पे बाय द वे आपने साइन इन करना है। Go there and sign in and you can see your emails there. Mine is taking a lot of time. By the way, ये खुल गया। Request hasn't made to join. अच्छा, मुझे इस तरह की ईमेल्स आई हुई हैं, रिगार्डलेस पता नहीं क्यों आई हुई हैं। आप लोगों को इधर आएगी ईमेल, ठीक है। और आप लोगों को टॉप राइट में दिखाता हूँ कि यही मेरा अकाउंट है 03134182@student.barrier.edu.pk। आपने बस उसको आउटलुक में जाके साइन इन करना है और आप लोगों को यहाँ पे ईमेल आ जाएगी गिटहब की, तो आप वेरीफाई कर सकेंगे। अच्छा, जब आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, देन यू हैव टू गो टू द लिंक जो मैंने इधर ऊपर अभी शायद भेजा है, education.github.com का है। वहाँ पे जाना है, बेसिकली दिस लिंक। I'm gonna close my email. Oof, I'm sweating. I have added any email. अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो बताएं, बल्कि हमने शुरू से तो करनी है आखिर फिर से वर्कशॉप। ये इसके फ़ायदे, बाय द वे आप इंट्रो पढ़ लें जल्दी से। Learn to ship software like a pro. There is no substitute for hands-on experience, but for most students, real-world tools can be cost prohibitive. That's why we created the GitHub Student Developer Pack with some of our partners and friends to give students free access. ये जो बात है, फ्री एक्सेस की जो बात है, take 5 more minutes, जिस इससे ऐड करना। अच्छा, एज आई वाज सेइंग कि टेक 5 मिनट्स में दो तीन चीज़ें जल्दी से चेक कर लूँ, ठीक है। आप उतनी देर जो है अपनी ईमेल्स ऐड कर लें और वेरीफाई भी कर लें, इट्स अ गुड थिंग।
मैं जल्दी से जाना दो चीज़ें कर लूँ। आई नीड टू चेक फ्यू थिंग्स। अब उनकी पुल रिक्वेस्ट के साथ साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने बस एक और चीज़ चेक करनी थी बेसिकली। इन्होंने पाइथन और मास्टर से इन्होंने पहले भी काम किया था पाइथन की रैंडम कोड वगैरह पे, लेकिन ये एक हमारे बंदे हैं हसीबुल्ला, इन्होंने शायद पहले भी अभी वो किया था कमिट। उनके मैं ये दिखाना चाह रहा था कि उनकी जो आई ट्रिपल बी की जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एड अप हो गई है उनकी, ये कंट्रीब्यूशंस वगैरह। बाय द वे मैं चेक कर लूँ कि डॉट एजू की अब उनकी ईमेल्स लग गई हैं। मुझे प्लीज़ बताते जाएगा जिस जिसकी ईमेल लगती जा रही है ना, प्लीज़ आई नीड एटलीस्ट 3 to 5 पीपल जो मुझे कह दें कि हाँ हमारी लग गई है, ताकि मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। बाकी फिर आप लोगों को एक दो चीज़ें भी दिखा दूंगा, लाइक वेबसाइट जो हमने शायद होस्ट की हुई है उसी डेवलपर पैक को यूज़ करके। अच्छा, तो ये हमारे फरहान अशरफ बाय द वे मीटिंग में इसमें बैठे हैं आपके साथ, रोल नंबर 37 इनका। ये फरहान अशरफ है, ये हमारे चेयर हैं ट्रिपल के, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी ईमेल लग गई है, लिंक भी लगा ली। ओके गुड, आता हूँ इसकी आता हूँ मैं इसकी तरफ। आपको दिखाना चाह रहा था कि हाउ अ गुड गिटहब प्रोफाइल जो है किसी भी, हाउ इट लुक्स लाइक, कि आपने लोगों को दिखाना आपने किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। ये हमारे दोस्त रिप्रेजेंटेटिव की फरहान अशरफ की है। अगर आपको दिखाऊँ, इन्होंने ये हम उनके, क्योंकि आप उनके लिए टेस्टिंग बना रहे थे तो हमने भी ऑब्वियसली इसमें कमिट किया था, लेकिन हम लोग दिखाते हैं हाउ टू कंट्रीब्यूट ऑन ओपन सोर्स। इनके प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ। 30 डेज ऑफ पाइथन के बूट कैंप्स होते हैं, डिस्कॉर्ड बॉट का विकिपीडिया बना रहे हैं हम लोग, ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी बना रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एज वेल। डिस्कॉर्ड बॉट जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, हैंगमैन गेम्स है इस पे भी आप कमिट कर सकते हैं, चेस गेम्स हैं, ट्विच बॉट्स हैं, फेस डिटेक्शन ओपन सीवी पाइथन में जो हम कर रहे हैं, ये भी हमने मेजर लीग हैकिंग के दौरान किया था, जो उनके इवेंट्स होते हैं मेजर। लॉगिन सिस्टम पाइथन में, सिंपल फ्लैश कैप, ये सारे जनरल प्रोजेक्ट्स, इन पे आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, और ये हमारे फरहान अशरफ ने भी इन पे कोलैबोरेट किया हुआ है। सेम मेरी भी यही कहानी, इनकी माशाल्लाह से 71 रिपोजिटरीज हैं, इसमें से कितनी फोर्क होंगी वगैरह वो आप देख सकते हैं। और मेरा भी अकाउंट इस तरह का ही है, कुछ इस तरह का, आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। आई हैव 34 रिपोजिटरीज। Someone wants to join. Can you please check join? ओके, ये आप मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं लोगों की, या ये मेरी अपनी रिपोजिटरीज हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट मच एज वेल। रेजिडेंस पे काम किया हुआ है, टू डू लिस्ट, ऐप, जावा, एंड ऑफ नंबर जनरेटर वगैरह, और ये रिपोजिटरी हमारी बनी हुई हैं, और यहाँ पे हमारी सारी कॉन्ट्रीब्यूशन भी शो हो रही हैं, आई थिंक दे शुड शो अप। अच्छा सॉरी, हम बहुत ही ट्रैक हो गए हैं। लेट्स गेट बैक टू दैट स्टूडेंट डेवलपर पैक। ओके, अब उनकी ईमेल ज़्यादा होगी ना, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू क्लिक ऑन गेट योर पैक। आप गेट योर पैक पे क्लिक करेंगे ना, मेरा तो ऑब्वियसली ईमेल लगी हुई है, तो आप लोग इट वोंट रिफ्रेश, और वो एक पेज लेकर आएगा जिसमें कहेगा कि आपने कौन सी ईमेल यूज़ करनी है। तो आपने अपनी वो यूज़ करनी है, क्या कहते हैं, student.edu.pk वाली ईमेल यूज़ करनी है। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यूनिवर्सिटी की ईमेल है, क्योंकि बैरिया की और एचईसी की वजह से जो है ना, गिटहब रिकग्नाइज करता है उनको एज अ स्टूडेंट ईमेल। तो आपने बस वो ईमेल सेलेक्ट करनी है, एंड देन यू ऑटोमेटिकली गेट योर गिटहब बैक। अब वंस यू डू दैट, अब मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि आप लोगों को फ्री क्या क्या मिलता है। डिजिटल ओशन, आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, एक ऐप होस्टिंग साइट वो है। आप इस पे ऐप होस्ट कर सकते हो, आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो, आपने कोई ऐप होस्ट करना हो
तो आप इस पे जाके होस्टिंग करते हो और ये आपको फ्री मिलती है। नेम चीप है, डोमेन होस्टिंग है, इसमें आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आपको फ्री मिलेगी साल की सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज कैनवा? कैनवा आई थिंक वो है जो वेब डिजाइनर भी में समवन हैड अ क्वेश्चन अबाउट वेब डिजाइनिंग इज वेल। तो क्या कहते हैं, ये उनके लिए कैनवा, लाइक इसका आपको प्रोफेशनल टूल्स मिल जाएंगे। Sorry about that. My team's in my head for some reason. They keep talking out of queue, and they should not do that. तो अच्छा, कैनवा हमारे पास, कैनवा ये जो भी ऊपर में हमें किसी ने चैट में पूछा था सवाल कि ग्राफिक डिजाइनिंग का आई थिंक रिलेटेड क्वेश्चन था, ये उनके लिए एक प्रोफेशनल टूल है जो यूज़ कर सकते हैं। इसी भी 12 मंथ की प्रोफेशनल आईडी की उनको सब्सक्रिप्शन मिल सकती है। ये द लिस्ट डज नॉट एंड हियर। ये पूरी लंबी लिस्ट है आपके पास, हर तरह की किसी भी तरह की ऐप होस्टिंग है, वेब होस्टिंग है, प्लेटफॉर्म होस्टिंग है, आईडीज हैं, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। यू कैन फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर मे बी 1 or 2 years। फ्रेश पॉइंट, ब्राउजर स्टैक्स, ऊपर जाते हैं तो काफ़ी रेलेवेंट हो गया। नेम चीप है। आपको आपको गिटअप गिटअप का क्या कहते हैं प्रो वर्जन भी मिल जाएगा आपको। जेट ब्रेन्स आपको बेसिकली जो जावा की आप एप्लीकेशन बनाते हैं, जावा का कोड लिखते हैं, वो जेट ब्रेन्स की आईडी यूज़ करके होता है, जो इंटेलिजे यूज़ करता है। यू कैन इसकी प्रोफेशनल जो आईडी है वो आपको मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एजर के क्रेडिट्स मिलेंगे उसकी फीस सब्सक्रिप्शन। यूनिटी, नेम.com एक और आपके पास डोमेन होस्टिंग आ गई, आप वेबसाइट और कर सकते हैं। एजुकेटिव के आपके पास कोडिंग के वो होते हैं, शायद लेसन होते हैं और बूट कैंप्स होते हैं, आप वो फ्री आपको मिलते हैं। टेक डोमेन वंस अगेन आपके पास वो आ गई, डोमेन होस्टिंग। बूटस्ट्रैप स्टूडियो, बूटस्ट्रैप जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट का शौक है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप बूटस्ट्रैप स्टूडियो यूज़ करें, क्योंकि इट्स सो गुड। आपके पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ होता है। फ्रंट एंड मास्टर्स आपके पास वो आ गया वंस अगेन। जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट का शौक है वो फ्रंट एंड मास्टर्स को डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप यूज़ करें। बड़े अच्छे कोर्सेज हैं उसमें, जावास्क्रिप्ट भी करवाते हैं, बूटस्ट्रैप, CSS, HTML, ये चार। अच्छा, फॉर पीपल हु वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट, तीन चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए फॉर फ्रंट एंड। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन आपको पक्की होनी चाहिए आपकी। एंड फ्रंट एंड मास्टर्स डज अ रियली गुड जॉब विद दिस। आपको वंस अगेन 6 months एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली द लिस्ट गोज़ ऑन। बाकी बाय द वे, हेरोकू जो है ना, ये लेफ्ट साइड पे हेरोकू जो लिखा हुआ है, ये बड़ी अच्छी ऐप होस्टिंग की वेबसाइट है। ये हम इस वक्त बाय राइट नाउ हम यूज़ कर रहे हैं। बैरिया के जो हम जो 3-4 बच्चे हैं ना, हम बेसिकली आगे जिन लोगों को डिस्कॉर्ड का नहीं पता ना, वो आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है, जैसे टीम्स है उसका डिस्कॉर्ड है, उसमें बॉट्स होते हैं। हम अपने बॉट्स जो है ना हेरोकू पे होस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ये सब्सक्रिप्शन यूज़ करके। और बाकी ये लिस्ट जो आप लोग खुद देख सकते हैं, अच्छी खासी लिस्ट है। आप उनको कोई डेटा कैम्प के कोर्सेज चाहिए, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट डॉट टेक, देयर इज सो मच यू कैन डू विद दिस एंड इट्स ऑल फ्री। यू आर नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी फॉर दिस। तो अर्डिनो, अगर अर्डिनो किसी को अगर रोबोटिक्स का शौक है तो वो अर्डिनो में काम कर सकता है। गिटहब डेस्कटॉप डेस्कटॉप का वर्जन है। ट्विलियो बेसिकली आपके पास एक API है जो आप अगर आपने कभी वो ऐसे मैसेज देखे होंगे कि जब आप किसी नंबर को कॉल करें फिर आपको ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज मिल जाता है, या मैसेज आपको वो SMS सेंड कर देते हैं, वो ट्विलियो जैसी ऐप्स हैं, वो ये हैंडल करती हैं। आप किसी नंबर को मैसेज भेजें, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स मिल जाता है, दैट इज़ ट्विलियो। और क्या क्या है, IMG भी बॉट वंस अगेन ऐप होस्टिंग आ गई। थिंकफुल, डैशलाइन, पॉप एसक्यूएल जाके जो आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाएंगे, आप SQL पढ़ेंगे डेटाबेसेस के बारे में, यू कैन यूज़ पॉप एसक्यूएल। एराफ्रूट तो हमें छोटी सी डिवाइस होती है जो आप, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, इतना नहीं वो करना चाहिए मुझे इसको डीप इन डाइव, लेकिन बाकी यू कैन चेक दिस थिंग्स आउट। सो दैट्स वेरी मच। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ कि हमने इसमें से क्या यूज़ किया हुआ है। आई थिंक जो हमारे चेयर है ना, उनकी आपको CV दिखाऊंगा, उन्होंने अपनी CV जो है ना बेसिकली होस्ट की हुई है एक डोमेन पे। आई थिंक वो नेम चीप पे है या डोमेन डॉट टेक डॉट डोमेन पे, इन दोनों में से किसी एक पर है, लेकिन बहरहाल जिस पर भी है ना, इन्होंने .ml पे होस्ट की हुई है। यू का मैं आप लोगों को लिंक भेजता हूँ कॉपी पेस्ट करके, यू गाइस कैन ओपन दिस लिंक एज वेल। अब जो डोमेन होस्टिंग होती हैं वो एक्सपेंसिव भी होती हैं काफ़ी, कुछ $100 की होती हैं, कुछ सस्ती भी 2-3 डॉलर की, लेकिन कोई कौन इतना ज़्यादा पैसे पे करेगा इन चीज़ों के। तो यू गेट इट फॉर फ्री फॉर अ ईयर, आप साल तक इसको जितना यूज़ करना चाहें। तो ये हमारे क्या कहते हैं जो चेयर पर्सन है, उन्होंने अपनी CV जो होस्ट की हुई है इस वक्त। मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट का फोल्डर मेरे पीछे पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, मैं भी काम कर रहा हूँ वेबसाइट पे, और इंशाल्लाह मेरी भी होस्ट हो जाएगी अगले 1-2 हफ्तों तक। सो ये बस हम एक छोटा सा पोटेंशियल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं बेसिकली। And I think our time is up. We've exceeded the hour limit. Yes, we have. So अब टाइम आ गया है जी इंटरेक्टिव सेशन का, अब आप लोगों से बात करने का। कोई क्वेश्चंस हैं फेंके जल्दी से। कोई अगर फंसा हुआ है अभी भी, कोई अगर फंसा हुआ है अभी भी किसी जगह पे, जिसका अकाउंट नहीं अभी तक बना हुआ, आ जाए शाबाश।
आई थिंक हम सबको प्रेजेंटर्स बना देंगे, अब जिसमें बात करनी आ जाए। हमारा इवेंट अब ख़त्म हो गया है। अब भाइयों वाला हो गया। हाँ, बाय द वे रिकॉर्डिंग बंद, और मेरी जो पूरी टीम है मेरे